السلام علیکم. گڈ مارننگ جینڈ کے پروگرام کا آج کا شمارہ لے کے آپ کے میزبان ڈاکٹر جاوید اور ہمارا شفیع حاضر خدمت ہیں. ہمارا پیار برا خلوص برا سلام قبول کیجیے اور ہماری دعا ہے کہ آپ سبھی انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. بخیر و عافیت کے ساتھ ساتھ آپ خوش و خرم بھی ہوں گے اور ہماری طرح آپ بھی دعاؤں میں لگے ہوں گے کہ رحمت بارہ آئے. اور آج جب ہم دن کی بات کر رہے ہیں، منگلوار ہے، 30 جنوری ہے سن 2024 اور چلے کلان جو ہے سردیوں کا بادشاہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور ہمارا مجھے ایک شعر یاد آیا، خواجہ حیدر علی آتش صاحب بڑے ایک اعلیٰ پایہ کے شاعر گزرے ہیں. ان کا ایک شعر ہے جو آج کے ان موسمی حالات پہ بڑا صادق آتا ہے. وہ یہ ہے کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا. تو جتنی چیزیں ہم نے دیکھی اس چلے کلان کے 40 دنوں میں، ابھی تو ایک دن ابھی باقی ہے. اللہ کرے کہ یہ ایک دن جو ہے ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں والی جو برف ہے وہ لے کے آئے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی برفباریاں جو ہوئی ہیں جن کی اطلاعات ہیں ہمیں بالائی علاقوں سے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے جتنی ابھی ہم کو ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جتنی برف ایکچولی گراؤنڈ پہ گری اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گری. فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر، ہر جگہ. نہیں ایکسائٹڈ ٹھیک ہے، لیکن تہ نا باسان کہ یوتن پیوی تمہ کھت زیادہ ون آسان کن جائے سو تک ونان کشر پٹھن مکر ویرن، وہ نا وہ ہلکی ہلکی سی وہ جب جو گرتی بھی ہے، لیکن برف گرنے سے پہلے گڑ پیوان سو ہلکا ہلکا سو کٹ کشا ہو تو ون آسان سو پیانے تو لک بناوان ناس برابر شین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں چلائے کلان میں لوگ اکثر جموں کا رخ کرتے ہیں نا، لیکن اس باری وہاں پر بھی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی. میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میں کل ہی آیا جموں سے، کچھ دن میں جموں میں تھا، کچھ مصروفیات تھیں اور یقین کریں آپ کہ اتنی ٹھنڈ میں نے پچھلے مطلب 20-30 سال سے جموں جا رہے ہیں ونٹرز میں، کبھی ایک دن کے لیے، 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، تو بہت ٹھنڈ تھی. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا، وہ تچ ونان سو یزن سے اڑجن تران چھ تر. اچھا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جموں میں جو سردیوں کے حوالے سے تیاریاں ہوتی ہیں وہ اس قدر نہیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کوئلہ ہے، کانگڑی ہے، اچھا ہر چیز. تو جمس مز تیاری آسان تمہ حساب کی تو یم زن کشر تور گئی تو تمو بچارو رچہ پام تمن دوپک یہ موسم تمہ کھت اصل تو کیا کرنے گئی وہ کشیر. بہرحال یہ موسم کے جو رنگ ہیں، بدلتے رنگ ہے، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ایک تو ہمارا جو ماحول کے تئیں ہماری غفلت شعاری ہے وہ ہے، اور دوسرا ہمارے گناہ ہیں. اوپر والا جو ہے وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے شاید، لیکن امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چلے کلان رخصت ہو رہا ہے ہم سے، رخصتی ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ تحفہ تو دے کے ہی جائے. جی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ جلدی برفباری ہونی چاہیے اور ڈھیر ساری بارشیں ہونی چاہیے. جاوید صاحب، آپ جانتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی ہم ناظرین کو دن کے حوالے سے بتا دیتے ہیں انفارمیشن. تو ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ملک میں نیشنل کلینلنس ڈے بھی منایا جا رہا ہے. جی ہاں، ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ صفائی کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہم سبھی کے لیے. اسی سلسلے میں دیش کے پردھان منتری جناب نریندر مودی جی نے سوچھ بھارت ابھیان کی شروعات کی. جی ہاں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہمارے دیش میں صفائی کو اور مزید بڑھایا جائے. ویسا میرا جو ذاتی طور پہ ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی جو صفائی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے. ہماری سوچ ہمیشہ صاف ہونی چاہیے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں، ہمارے مذہب میں بھی صفائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو خود کو صاف رکھتا ہے. اس میں باضابطہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو صفائی رہنے سے جب نصف ایمان، مطلب صفائی کو نصف ایمان کہا گیا. یہ جو
اس کے حوالے سے جو یہ ابھیان وغیرہ چلائے جاتے ہیں حکومتی سطح پہ، وہ اسی بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ صفائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ہم صرف اس نظریے سے نہ دیکھیں صفائی کو کہ سون اوند پوک صاف. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جتنی زیادہ غلاظت گندگی پھیلی ہو ہمارے آس پاس تو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے. اور پھر جب دیکھتے ہیں ہم تو پھر جب وبائی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، چاہے وہ ونٹر میں ہو چاہے وہ سمرس میں ہو، تو پھر ہسپتالوں کا جو ہے حال ہی برا ہو جاتا ہے. جتنے لوگ بیمار لوگ وہاں ہو جاتے ہیں، جہاں ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ پھر لوگ ان ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں اور پھر ہاسپٹلز میں بھی کیوس مچ جاتا ہے. جی، اس کے علاوہ یہ پیرنٹس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دے صفائی کے حوالے سے. صفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے ہم سب کے لیے. ہمیں نہ صرف اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے بلکہ جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں روڈز پہ یا پبلک پلیسز پہ، کچرا ہمیشہ جو ہے ڈسٹ بن کے اندر ہی ڈالنا چاہیے، جو کہ جگہ جگہ پہ آج کل انسٹال کیے گئے ہیں. رائٹ، بالکل. اور ہمارا چائے کی چسکیاں تو ہم لے رہے ہیں ناظرین وہاں اس طرف، اور آپ کم ہی پیتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے، آپ چائے کم پیتی ہے، لیکن چائے کے ساتھ ساتھ اگر نغمہ ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. کشمیر کے دو ممتاز مایہ ناز جو ہیں فوک سنگرز، عبدالرشید حافظ صاحب اور گلزار احمد گنائی صاحب، یہ ان کا شمار جو ہے چوٹی کے کلاکاروں میں ہوتا ہے. تو ان دونوں کی جگل بندی میں اگر ایک فوک نغمہ سنایا جائے اپنے ناظرین کو تو پھر میرے خیال سے اس سے بیسٹ تحفہ جو ہے، اس سے بہترین تحفہ ہم ان کو صبح صبح دے نہیں سکتے ہیں. آئیے ناظرین اس خوبصورت نغمے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. عبدالرشید حافظ صاحب اور گلزار احمد گنائی صاحب کی آوازوں میں عکس بند کیا ہوا یہ نغمہ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں. اس کے بعد پروگرام میں آج آپ کی ملاقات آج کے اہم مہمان سے کرائیں گے. بڑا اہم آج ہمارا ٹاپک ہے، بڑی اہم شخصیت کو ہم نے آج مدعو کیا ہے پروگرام میں. آپ دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور ہم اس نغمے کے بعد یوں گئے اور یوں لوٹے. Yar doğnar zalim kohman beşi yar asman Tanrı'nı yar asman Yar doğnar zalim kohman beşi yar asman Tanrı'nı yar asman Kar ney tonam sıçum darbadan beşi yar asman حالتی یار اسمان یار دونار زالان کوتوان بسی یار اسمان لیلتی یار اسمان در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح لکن ذاتن در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح لکن ذاتن در روز ازل یمن آکاشکن نکالک پان ذاتن لال کو ڈکرا گرم مجھ ساو شانن نشی یار تللتی یار یہ یار دو نار بد سالان کوتوان نشی یار اسمان تللتی یار اسمان لال کو ڈکرا گرم مجھ ساو شانن نشی یار اسمان تللتی یار اسمان یار دو نار سالان کوتوان نشی یار اسمان تللتی یار اسمان رحمتک شبنم پیو من صدرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیو من صدرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیو من صدرس ولی مزرور صدفن
رحمتک شبنم جوان صدرس ولی مزرٹی صدقن وار کی زونی لال پول ڈنگلن وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان وار کی زونی لال پول ڈنگلن وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان پترے گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنن 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 ییٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان ییٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان تمہِ جایہِ تصویر ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان تمہِ جایہِ تصویر ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان دوٗرِ چھُ بال یارِ مدیٖنہٕ لایان کوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ مدیٖنہٕ لایان کوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ مدیٖنہٕ لایان کوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ مدیٖنہٕ لایان کوٗر چھس مےٚ تراوان ژوٗرِ پٲٹھۍ ژوٚلُم یار منٛزٕ چھُ خانٛدر وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نال پت زالان پوتوان وسیے یا رسمان لیلتی یا رسمان ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور ناظرین آپ نے ابھی بہت ہی زبردست سا نغمہ سنا جو کہ میں نے بہت انجوائے کیا. اور ابھی بریک کے دوران جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ہی پسندیدہ گانا بھی ہے. بہت کیونکہ ہم بچپن میں اس گانے کو سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمیرا جی ایک دلچسپ بات بتاؤں گا میں آپ کو. یہ لکٹیس بوزان یار دود نار کھوت زالان کوت بوزان یہ کوتوان
कोतमन क्या गो। तो फिर जब शऊरी तौर पे थोड़े से बालिग हो गए फिर लगा कि ये कोहतवन। अच्छा, ठीक है। तो बचपन में हम इसकी ट्यून जो थी वो वही रखी है, इस नगमे को लाफानी बनाया है इन दो आवाज़ों ने, खूबसूरत आवाज़ों ने, गुलजार साहब और हाफिज़ साहब की आवाज़ों ने, और बड़ा एंजॉय किया हमने। और हमें बिल्कुल यकीन है कि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने भी इस नगमे को बहुत एंजॉय किया होगा जी। और नाज़रीन कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। ये जो कोट है ये डेडिकेट करती हूँ मैं आज के गेस्ट पे। आपकी मुलाकात कराएंगे आज के गेस्ट के साथ एक वक्फे के बाद। बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। तो चूँकि हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के और अभी वक्त हो चला कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। नाजरीन, रवां माह के पहले हफ्ते में LG इंतज़ामिया ने जो यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी फेरबदल किए। बहुत सारे ऑफिसर्स का तबादला अमल में लाया गया और इन्हीं तबादलों में एक तबादला ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, उनको चेंज किया गया और एक नहायत ही मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर को ये असाइनमेंट जो है तफवीज़ की गई, जिन्हें मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की जो स्टाफ हैं, जो वहाँ पे इंतज़ामिया है, उन्होंने उनको बड़ी ख्वाहिशात के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई क्योंकि इनका एक तजुर्बा रहा है मेडिकल एजुकेशन के साथ, ये वाबस्ता रहे हैं 2-3 साल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और उसके बाद अभी 2-3 हफ्ते ही हो गए इनको और हमें लग रहा है कि उम्मीद की वो किरण हमें भी नज़र आ रही है कि जब ग्राउंड पे कुछ सूरत हाल चेंज हो जाए। हमारे आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्हें हमने आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, मोहम्मद अशरफ हकाक साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम में वालिहाना इस्तकबाल हम करते हैं। शुक्रिया। आपकी नई असाइनमेंट के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ।
बधाइयाँ भी और नेक ख्वाहिशात भी, नेक तवक्कुआत के साथ आप इस पोस्ट पे आपने 4 या 5 जनवरी को गालिबन आपने ज्वाइन किया और काफ़ी सारी जो हैं चीज़ें तवक्कुआत जुड़ जाती हैं जब कोई कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी जगह जाते हैं तो फिर लोगों की तवक्कुआत खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी जो प्रेजेंट असाइनमेंट है उस पर हम बात करें, हमारे प्रोग्राम में हम अक्सर बेशतर जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उनसे हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि अशरफ साहब का ताल्लुक़ जो है कहाँ से है, आप कहाँ पैदा हुए, तालीम और तरबियत का क्या सिलसिला रहा और एडमिनिस्ट्रेशन में ना आना क्या इत्तेफाक था या आप बाई चॉइस आए इसमें, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे पहले। जी, मैं बेसिकली श्रीनगर के शहर खास का रहने वाला हूँ जी। तो मेरे फिर बाप दादा गांधरबल में कंगन की तरफ चले गए थे। यहाँ से जी जी बिल्कुल बिल्कुल खुली फजाओं में बिल्कुल बिल्कुल तालीम पूरी मैंने यहाँ ही की है, श्रीनगर में ही की है। इस्लामिया कॉलेज से मैंने बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया हुआ है। तो उसके बाद मैं गांधरबल में ही एक एज ए प्राइवेट टीचर काम कर रहा कुछ अरसे, उस दौरान मैंने बीएड की डिग्री हासिल की। उसके बाद में 1998 में बेहसियत गवर्नमेंट उस्ताद सिलेक्ट हुआ। 3-4 साल में एज टीचर आपने काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल रहा। उसके बाद 2001 में मैं कंबाइनड सर्विस के थ्रू JKS में आया, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी, आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, इसकी तरफ जाना है? देखिए उस वक्त हमारी यही थी, ये सिविल सर्विसेज हमारे लिए वो एक कशिश थी। हम में से यस यस हमारे उस वक्त इतना नहीं था। आज आप देखते हैं हर साल बैच निकलते हैं, हर साल नई नई सिविल सर्विस में IAS में जाते हैं लोग। उस वक्त एक था कि नज़र में तो था कि सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन रहनुमाई उतनी नहीं थी, कोई रास्ता दिखा रास्ता। आज आपके पास इंटरनेट है, सारी चीज़ें कुछ भी खोज निकाल सकते, वो नहीं था। तो 2001 में मैं सिलेक्ट हुआ। तो फिर इम्पा में ट्रेनिंग्स के बाद मुख्तलिफ जगहों पर मेरी तैनाती हुई, मुख्तलिफ महकमों में मेरी। एक तायराना नज़र डालेंगे हम जो आपका जो सफ़र रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सफ़र जो रहा है, आपने कहाँ से शुरू किया और एज एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स तक जो ये सफ़र है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से होके किन गलियों से गुजर के ये सफ़र जो है यहाँ तक आप पहुँचा है? मैं पहले जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो बहैसियत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर दोडा थी। तो दोडा में करीबन 1 साल से कुछ अरसा ज़्यादा ये तैनात रहकर मेरी पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर करगिल की गई। उसके बाद करगिल में कई 8-10 महीने के बाद मुझे दोबारा तब्दील करके डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुलवामा लाया गया। पुलवामा में मैंने करीबन 4 साल एज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम किया। तो 2009 में मुझे उस वक्त प्रमोशन के साथ साथ मुझे PRO टू IGP कश्मीर तैनात किया गया। ये कई 5-8 महीने का ही टेन्योर रहा। उसके बाद मैं चला गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज जी। तो वहाँ मेरी 2 दफ़ा तैनाती हुई गुरेज में जी। 4 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ से होकर जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज गांधरबल की गई। तो कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद मेरी पोस्टिंग एज डिप्टी सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरीट में हुई। सिविल सेक्रेटरीट में एज डिप्टी सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री मैंने काम किया। उसके बाद मेरी वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी हुआ तैनात। तो मेरी ट्रांसफ़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिविल सेक्रेटरीट में ही हुई। उधर उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में मैंने 2-2.5 साल काम किया। तो ये वो नाजुक पीरियड था जिस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी दबाव था। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में करीबन 2-2.5 साल के काम करने के बाद मैं लेबर एम्प्लॉयमेंट में एज एडिशनल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रहा। हायर एजुकेशन में एडिशनल सेक्रेटरी रहा। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन काउंसिल रहा, जो सोशल वेलफेयर के तहत एक महकमा आता है। तो उसमें 2 दफ़ा मेरी तैनाती हुई। उसके बाद मैं 2018 में मुझे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तैनात किया गया। तो उसके बाद उसके बाद वाली पोस्टिंग मेरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा हुई। तो पुलवामा के बाद मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के बाद मैं एडवाइज़र थे हमारे LG साहब के, उनके साथ एज
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी चला। जी सर, ये टेन्योर मेरा 2-2.5 साल चला। तो 2022 में मेरी तैनाती एज प्रोग्राम ऑफिसर ICDS बांडीपोरा हुई। अच्छा। तो बांडीपोरा में उस महकमे में काम करते हुए वहाँ पर कुछ और असाइनमेंट मेरे हवाले की गई। वहाँ पर ADDC की पोस्ट खाली थी तो उस पर मैंने काम किया। ACD की पोस्ट खाली थी तो मैंने वहाँ तक काम किया। तो जनवरी के पहले हफ्ते में 4 जनवरी को मेरी तैनाती। तो इस लंबे सफ़र को आपने 20-22 साल के इस सफ़र को आपने बस कुछ सेकंडों में हमारे नाजरीन के साथ साझा किया। और यूँ कह सकते हैं कि एक वसी तजुर्बा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इंक्लूडिंग हेल्थ। बिल्कुल। जहाँ और जो हमारी राय है वो ये कि जो आपकी असाइनमेंट्स रही हैं अभी तक, उनमें सबसे जो चैलेंजिंग असाइनमेंट है वो अभी को आपको अब दी गई है एज एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। तो उस पे हम आते हैं, उसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि मसाइल काफ़ी हैं, लोगों को काफ़ी दुश्वारियां हैं। हालांकि LG इंतज़ामिया ने बहुत काम किया है इस हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और ग्राउंड पे दिख रहा है। लेकिन एक सही एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है इन अदारों में, ताकि जो गवर्नमेंट चाहती है वो मिनो अन फिर अमलाया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट का जो मुद्दा व मकसद होता है लोगों की आसानियाँ, वो आसानियाँ लोगों को वाक़अतन फराहम की जा सकें। तो ये जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो क्या क्या जो दायरे इख्तियार में है आपके, कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितना स्टाफ है, कितना अमला है, और क्या क्या अभी जो आपका मुशाहिदा रहा है इन 2-3 हफ्तों में ही, अभी 2-3 हफ्ते ही हो गए आपने, लेकिन मीटिंग वगैरह मेरे ख्याल से दूसरे ही दिन ली आपने। जी बिल्कुल। देखिए हमारी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है ये 7 है। 7 तो और ये मेन हॉस्पिटल है। आगो मेडिकल कॉलेज, हेडमून Asgo SMHS मेडिकल कॉलेज बेसिकली इट इज एकेडमिक साइड, जहाँ पर हम MBBS और MD और PG ट्रेनिंग देते हैं वगैरह। बिल्कुल। तो हमारा हॉस्पिटल 7 है SMHS बेगो बर्जलियो बोन एंड जॉइंट हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, LD हो गया हमारा, ठीक है ना सर। हमारा CD हॉस्पिटल हो गया, हमारा साइकेट्री हॉस्पिटल हो गया। जी बिल्कुल। तो हमारा एक और हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो हमारे उसके अलावा हमारे साथ कश्मीर नर्सिंग होम चलता है। जी ये हमारा OPD एक हॉस्पिटल है जिसमें हम डे OPD फराहम करते हैं विद डे IPD। अगर किसी को एडमिट करने की जरूरत है तो वो भी करते हैं। ये आपकी इस कश्मीर नर्सिंग होम से मुझे याद आया, जब 2020 में कोविड हुआ तो मुझे वहीं एडमिट किया गया था। मैं ऑलमोस्ट 15-16 दिन वहाँ उस वक्त उसको यूज किया गया क्योंकि उस वक्त बेड से रंगत बढ़ानी थी, क्योंकि पेशेंटों की तादाद कोविड की वजह से जो इफेक्ट हो रहे थे, वो एक बहुत ही बेहतरीन कदम था उस वक्त। तो इसके अलावा हमारे पास एक पूरा ब्लॉक है, मेडिकल ब्लॉक हजरतबल, जहाँ हमारी हाँ ये हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है। और इसके अंदर करीबन हमारी 1,60,000 की पॉपुलेशन आई थी, आबादी आई थी। फकीर गुजरी, दारा, निशात, हरवन, शालीमार, ये सारा एरिया, डल के बहुत से एरियाज हमारे अंदर इसमें आते हैं। मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट कंट्रोल। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें और स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है? अगर हम क्योंकि एकेडमिक जो है वो तो शायद आपके ज़ेर इख्तियार नहीं आता है, लेकिन उसके नॉन एकेडमिक में हमारा करीबन देखिए हमारा पैरामेडिकल है जिसमें हमारी जूनियर ग्रेड सीनियर ग्रेड नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, OT टेक्नीशियंस हैं, हमारे MRIs मशीन्स लैब टेक्नीशियन है। हमारा स्टाफ 5,000 से ज़्यादा है। डॉक्टर्स हमारे पास बहुत है, मतलब हमारे पास ये एक अंदर से एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है इसमें ये स्टाफ। जी जी आपने कहा कि आपको कम ही टाइम अभी हो गया ज्वाइन करते हुए यहाँ GMC श्रीनगर। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अभी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का मेन, देखिए ये जो हमारे टर्शियरी केयर वाले 7 हॉस्पिटल हैं या हमारा हजरतबल ब्लॉक है या हमारा कश्मीर नर्सिंग होम, इनकी फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग, इसका सुपरविजन पूरा, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हम OPD देते हैं, जो भी फंक्शनिंग है इस पर पूरी नज़र रखनी है। सुपरविजन इसका सारा है। आपको पता है ये कितने इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स है हमारी सारी टर्शियरी केयर। SMHS में हमारी एक दिन की करीबन OPD एंड कैजुअलिटी करीबन 2,500 से 3,000 होती है पर डे। हमारे अगर आप बोन एंड जॉइंट का देख ले तो हमारे करीबन
900 केस आते हैं और आपको पता है बोन एंड जॉइंट में ट्रॉमा केसेस आते हैं, फ्रैक्चर्स एंड अदर थिंग्स। तो एलडी मैटरनिटी हॉस्पिटल, वाइड मैटरनिटी हॉस्पिटल 700 से ज़्यादा बेड कैपेसिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और ऑलमोस्ट 100 डिलीवरीज जो है वहाँ पे अमलाई जाती हैं एलडी हॉस्पिटल में। हम कुछ और मामलात पे, बड़े अहम मामलात पे जो कुछ दिक्कतें आवाम को फेस करनी पड़ती हैं, उनके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पर आएंगे तो आज के हमारे जो मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ हकाक साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के, इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जिनके। गटि मंज जन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब मोहम्मद अशरफ हकाक साहब, हु इज़ करंटली वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर एट GMC श्रीनगर। सर, आपसे मज़ीद हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि आपको काफ़ी सारे काम देखने पड़ते हैं, जैसे लीगल मैटर्स की बात करें, पब्लिक ग्रीवेंसेस के अलावा बहुत सारे काम भी होते हैं। हमें बताइएगा आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सारे काम स्मूथली हो रहे हैं? देखिए, एक हमारा डेस्क वाला सिस्टम बना है, मेरी नीचे एक स्टाफ है, हमारी एक पर्सनल ऑफिसर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फिर डेस्क है, गेजेटेड डेस्क है, नॉन गेजेटेड, हमारे ALR साहब हैं जो लीगल मैटर्स देखते हैं, हमारा प्लानिंग सेक्शन है जो प्लानिंग की चीज़ें देखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, किस हॉस्पिटल में किस मशीनरी की ज़रूरत है, क्या चाहिए। हमारा अकाउंट सेक्शन है जो अकाउंट फाइनेंशियल मैटर्स डील करता है। तो इसको देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और बाकी जगहों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है, सेटअप सारा वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है, ज़्यादा ही काम करता है। इवन हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ काफ़ी अवेलेबल होते हैं, मतलब काम बहुत करते हैं। काम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल 24 आवर्स वो अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबल, हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हर चीज़ की निगरानी होती है। अब हमारे सेटअप में देख लीजिए, हमने CCTV कैमराज हर एक जगह पर नस्ब किए हैं, मॉनिटर होता है, हर एक एक्टिविटी मॉनिटर होती है, पूरे तरीके से पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जी, इसके अलावा सर बताइएगा, जब टेक्नीशियंस होते हैं या जो मेडिकल स्टाफ है ना, जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, नई ड्यूटीज़ पे अलॉट किया जाता है, क्या उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उससे पहले? देखिए, स्टाफ अलग अलग लेवल के हैं। MTS है, दैट इज़ आपको पता ही, MTS एज ए क्लास 4th स्टाफ, उनका अपना जॉब असाइनड है। फिर लैब टेक्नीशियन है हमारे, OT टेक्नीशियन है, पहले ही ट्रेनड है, मतलब वो अपने अपने स्पेसिफिक जॉब में पहले ही ट्रेन होकर ही वो वही उसमें रूल्स में है कि हमें किस तरबियत का, किस एक्सपीरियंस का आदमी चाहिए, कौन सा आदमी चाहिए। उसके अलावा हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जैसे हमारे पास AMT स्कूल है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसमें जैसे नॉर्मल एडमिशन होता है कोई भी एडमिशन, इसके अलावा हम इन सर्विस कैंडिडेट को भेजते हैं ताकि इनकी कैपेसिटी एनहांस हो, या जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है, किसी चीज़ में हमें लगता है हमें 2-4 और आदमी चाहिए तो स्पेशलिटी हो तो हम उनकी ये कैपेसिटी एनहांस करने के लिए उनकी ट्रेनिंग। हुमैरा के इस सवाल के हवाले से को आगे बढ़ाते हुए इसी हवाले से एक चीज़ मेरे जहन में आया। रिसेंटली हमने देखा कि
LD हॉस्पिटल से जो OT टेक्नीशियंस हैं उनको en masse ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्हें दूसरी जगहों पे लिया गया, जिसकी वजह से जो नए स्टाफ आए वो भी काबिल हैं, वो भी OT टेक्नीशियंस हैं, लेकिन काम सीखने में और किसी अथ वनान कशर पे अंज वंज गन अत लगान टाइम क्या कोई ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं किया जा सकता है? क्या ट्रांसफ़र्स तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम बंदों को एक जगह नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक ग्रेजुअली अगर 10 बंदे किसी जगह काम कर रहे हैं तो अगर 2 को ट्रांसफ़र किया जाए 8 उन आने वाले 2 को सिखा सकते हैं। लेकिन देखने में आया कि LD में जो मसला हो गया वो ये था कि 10 में से 9 को ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1 को रखा गया वहाँ, जिसकी वजह से काम बड़ा मुतासिर हुआ, लोगों को दिक्कतें हुई। क्या इस तरह की और भी शिकायत होंगी जो कहीं कहीं पे ट्रांसफ़र का एक डेफिनेटली एक निज़ाम होता है, एक ये होती है, पॉलिसी होती है जिसके तहत ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं, आपको नर्सेज हैं, किसी जगह मेडिकल स्ट्रीम्स ऐसी हैं नहीं कि अगर आपका नेफ्रोलॉजी में कोई बंदा काम कर रहा है उसको आप गैस्ट्रो में डाल रहे हैं तो वहाँ पे निज़ाम डिफरेंट है। वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन लाइव्स। बिल्कुल तो बिल्कुल अचानक से एकदम से अगर किसी ऑफिसर को गुस्सा आया तो उन्होंने उठा करके पटक दिया सबको, तो पेशेंट्स का क्या हाल हो जाएगा? ऐसी सूरत हाल में ऐसी शिकायत का तदारुक करने के लिए क्या आप कोई अमली तौर पे कुछ करेंगे जिससे ये इंश्योर हो कि ऐसी ट्रांसफर्स ना हो जाएं? देखिए, जो ट्रांसफर्स का प्रोसेस है हर एक जगह होती है। मेरी सर्विस में हुई होंगी, सबकी सर्विस में हुई ट्रांसफर, बड़ी लंबी लिस्ट सबकी सर्विस में ट्रांसफर होती है स्पॉट। और हमारे जो भी आते हैं, जो भी मुलाजिम आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। हमने किसी को LD के लिए, बोन एंड जॉइंट के लिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए रिक्रूट नहीं किया हुआ। हाँ, एक स्पेशलाइजेशन अलग है, फैकल्टी वाला पीडियाट्रिक सर्जन है, ही विल गो टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल ओनली। लेकिन ये एक चीज़ है, वक्त के साथ साथ अब जो ये बनता है, जैसे LD में कोई स्टाफ, तो उनकी थोड़ी सी वो जानकारी बनती है, उनका अपना निज़ाम बनता है, कोई 2 चीज़ें सीख भी लेता है। ट्रांसफर्स हो गई, उसमें हो सकता है ज़्यादा भी लोग गए हो, लेकिन आपको पता है जो ही ये मैंने ये निज़ाम संभाला, उसके दूसरे दिन मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबको बुलाया। जहाँ जहाँ पर भी ये कमी हुई थी, कहीं 4 बंदे ये लगता था 4 बंदे निकल कर थोड़ी सी उसमें काम में थोड़ा सा धीमापन आया है, काम रुका नहीं। तो उसे सूरत लाने के लिए हालत में तो काम रुक सकता है, कोई परेशानी, काम चल रहे थे, तो जो हमें उसमें रखने थे, हमने कुछ लोगों को वापस उस जगह पर रख दिया। लेकिन तबादले हिस्सा है हमारी नौकरी के। हाँ, तबादलों से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन हकाक साहब एक चीज़ ये एक निज़ाम होता है, क्योंकि हालत में आप ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकते हैं कि आप अगर 10 बंदे कहीं पे काम कर रहे हैं, अब 10 के 10 को उठा करके दूसरी जगह रख दें, नए 10 आ जाएंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कूप अप विद न्यू एनवायरनमेंट, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। बिल्कुल फेज में होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल बरक है कि फेजों में होना चाहिए। 1 2 अगर आपको 10 निकालने लेटे, फर्स्ट 3 आपने निकाले, अगली दफा और दिक्कत, ताकि वो तरबियत याफ्ता हो जाए, एक्सपीरियंस गेन करे, तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ऑन द नेक्स्ट, ओनली द नेक्स्ट डे वी टुक द केयर ऑफ दैट थिंग एंड इट वाज डन। अब आज कहीं से भी किसी भी हॉस्पिटल से द सिस्टम हैज बीन ब्रॉट ऑन द सेम पैटर्न बैक जहाँ पर था, और हमने स्टाफ का मैक्सिमम ना यूटिलाइजेशन की। सर, इसके अलावा हमें बताइएगा हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट केयर मैनेजमेंट है उसकी क्या अहमियत होती है? क्योंकि सिर्फ ये डॉक्टर्स पे जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो चेक करे पेशेंट्स को, क्या उनको अच्छे से मॉनिटर किया जाता है? देखिए हमारे हॉस्पिटलों में जो भी निज़ाम है, आप देख ले, RMO होती है, हमारी CMO होती है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, हमारे मैट्रन होती हैं जो नर्सिंग का देखती हैं। क्या रोस्टर ठीक से चल रहा है, क्या अटेंड हो रहा है। हमारे MTS का ऊपर एक लेवल का ऑफिसर है जो देखता है हर एक जगह। हमारा सिक्योरिटी, वी हैव द सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल, वो उसका एक लेवल है। आप SMS से चाहिए, हमारी कैजुअलिटी में देखिए रश क्या होता है, एवरी सेकंड वी गेट ए पेशेंट। बिल्कुल सही। तो उसका मैनेजमेंट और कैजुअलिटी हमारा, इट इज़ इमरजेंसी ब्लॉक ऑल्सो, तो काफ़ी लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। हर एक का एक अपना जॉब असाइन है, वहाँ से रिसीव करने तक, रिसेप्शन से लेकर उसको पहला चेकअप करने और
बराबर अगर उसको वहीं से फारिग करना है, उसका उसी लेवल का है या उसको एडमिट करना है, हर एक लेवल का पूरा एक प्रोसेस बना है और पूरा देख लिया जाता है। अच्छा हकाक साहब, एक चंद मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराएंगे। हालांकि ये मसले साल से वहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी अर्ज़ किया कि कुछ तवक्कुआत होती हैं कि नहीं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे आ जाएंगे तो इनकी वजह से शायद वो तब्दीलियाँ ग्राउंड पे हमें दिखेंगी। पहली चीज़ वो ये कि तमाम इन हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलरली एसएमएचएस हॉस्पिटल में जब आप मेन गेट से, जो जेके बैंक के साइड से जो गेट है, जब आप उस गेट से दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स। जी बिल्कुल। तो उन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे इतना रश होता है क्योंकि आपने इसको कंप्यूटराइज किया है। या तो अमले में ये इशू है कि उनको नाम भी लिखना है, पेरेंटेज भी लिखना है, रेजिडेंस भी लिखना है, फ़ोन नंबर भी लिखना है, और कहीं कहीं पे आपको शायद वो पूछते भी हैं कि कौन से कहाँ पे जाएंगे आप। तो उस प्रोसेस में क्या स्टाफ को और इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, ताकि अच्छा, हालांकि गवर्नमेंट ने आभा की ये रखी है स्कैन करके आप कर, लेकिन हमारी जो एक बेशतर पॉपुलेशन है जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास मोबाइल अगर हो भी तो उस पर वो ये मतलब वो इतने टैक्सी भी नहीं है कि वो आभा से इसको स्कैन करके फिर वो सब चीज़ें करें। वहाँ पे कियोस्क मचा रहता है और हमेशा वहाँ पे मर्द और जन की तफरीक नहीं रहती। उसके बाद जो बंदा वहाँ चिट्ठी निकालने के लिए जाता है तो मतलब हालत खराब हो जाती है। देखिए ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए ये तो मतलब एक छोटी सी चीज़ है, उसके बाद हम और भी मसाइल पे आएंगे, लेकिन इस चीज़ पे क्या हकाक साहब इंश्योर कर सकते हैं कि इस चीज़ में थोड़ी सी बेहतरी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। देखिए हमने सारे हॉस्पिटलों में ई-सैज किया, दैट मीन्स कंप्यूटराइज्ड, आपका नाम सारा वो पूरा, और जब आभा के साथ लिंक होता तो हिस्ट्री आल्सो कम्स ऑटोमेटिकली कम्स। डेफिनेटली। तो ये सिस्टम इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। आप जो कह रहे हैं तो बिल्कुल हम कहते हैं, मैंने कहा पहले भी कि वी ट्रीट 2500 लोग ओपीडी एंड कैजुअलिटी इन एसएमएच ओनली इन अ डे। अच्छा, स्टॉप जी सारा रखकर भी अब सारे पेशेंट हैं जी, कोई और लाइन तो नहीं है, एवरीबॉडी इज अ पेशेंट, किसी की बारी इसमें ये नहीं कर सके इसकी बारी पहले है या ये, हर एक इसने थोड़ा सा ही क्योस होता है, होगा इसको ठीक करेंगे। अगर थोड़ा सा और मैन पावर लगाने की जरूरत पड़ेगी वो वी विल डू दैट। जी सर, इसके बरक्स आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हॉस्टल के अंदर कैसी फैसिलिटीज़ होती है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्टल बेमिना की, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यही शिकायतें हैं कि उनको खुद से जो अप्लायंसेस है, फैंस वगैरह वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हालांकि वो पे करते हैं हॉस्टल के लिए रेंट, बट उसके बावजूद भी दे पे देमसेल्व्स। व्हाट अबाउट दिस? देखिए हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए हमारी सारी मेडिसिन फ्री है, आउट ऑफ पॉकेट आजकल जीरो एक्सपेंडिचर है। मिनिमम जो ना मुश्किल से जो ना टेस्ट, लैब टेस्ट कोई मैक्सिमम तो गोल्ड कार्ड से ये हो जाते हैं। अंदर नहीं, फैसिलिटी भी अंदर ही है, गोल्डन कार्ड तो है ही है, फैसिलिटी है हमारे पास सारी, एमआरआई से लेकर कैथ लैब से लेकर गैस्ट्रो से लेकर नेफ्रोलॉजी के आप देख लीजिए। इवन कार्डियोलॉजी वी रन नाउ 24/7। यस सर, पहले दिन में करते थे कार्डियोलॉजी, आज एंजियोग्राफी शाम को करनी है कि शाम को देखिए हार्ट अटैक का मामला है कुछ है, इसको थोड़ी कल का वी आर ओपन फॉर 24/7 सुपर स्पेशलिटी में करते हैं। हमारा आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और हॉस्टल की बात कर रहे हैं, आप हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लीजिए, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल 500 बेडेड नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, बेहतरीन हॉस्पिटल, और हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक सर्जरी वाला हम वहीं शिफ्ट करें। इट इज एवरी ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। तो अब हॉस्टल की बात हुई, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ हैं। प्रिंसिपल साहब और मैं तीसरे दिन गए, दूसरे दिन तो मीटिंग की, सारा ठीक किया, कुछ था छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई शीशा हिल गया था, टूट गया था, वी रिपेयर्ड इट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों में होता है। चलें उम्मीद करते हैं कि उसमें थोड़ा सा सुधार आए। एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराएंगे, वो है जो सुपर स्पेशलिटी के हवाले से है। उस पे हम एक अहम नुक्ते पे हमको बात करना लाजमी है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकते हैं, वक्फे के उस पर आएंगे तो सुपर स्पेशलिटी के हवाले से एक अहम बात हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे गेस्ट जो हैं मोहम्मद अशरफ हकाक साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जीएमसी एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल श्रीनगर के। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। हम यूं गए यूं लौटे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और गुड मॉर्निंग जैन के में हमारे आज गेस्ट के जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मोहम्मद अशरफ हकाक साहब, एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। तो हम बात कर रहे थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बड़े शोर करके इसको बनाया गया और बड़ा दबदबा ज़बरदस्त के नहीं जी। जम्मू में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, कश्मीर में भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। जब हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये एक कदम आगे, मतलब जो आपकी फैसिलिटीज कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उससे थोड़ा सा इसको नाम ही रखा गया सुपर स्पेशलिटी। लेकिन दो इश्यूज बड़े बर्निंग इश्यूज हैं। पहला तो ये कि उस हॉस्पिटल में लैब नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको मामूली ब्लड टेस्ट एक कोई करना है तो आपको वो सैंपल निकाल करके, वो लोग ऐसे आपने कॉरिडोर्स में देखा होगा तीमारदारों को, वो बेचारे एसएमएचएस की लैब में जाते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। और दूसरा, ब्लड बैंक की सहूलियत नहीं है उसमें। तो ये दो जो इश्यूज हैं, बड़ी मतलब दिक्कतें होती हैं लोगों को। एक दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2018 में था, हालांकि डिपार्टमेंट आपने बढ़ा दिए, उसमें एक डिपार्टमेंट बढ़ जाता है। अभी 9 डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके साथ मुंसलिक एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है पिछले कई सालों से, लेकिन वो पता नहीं उसमें किस तरह का काम हो रहा है, इंटीरियर काम ऐसा हो रहा है कि वो कभी बन के तैयार ही नहीं हो पा रही है, ताकि इस हॉस्पिटल का जो कंजेशन है उसको डिकंजेस्ट किया जा सके। लेकिन लैब का जो इशू है बड़ा दिक्कत। सुपर स्पेशलिटी आपको नाम से ही है, सुपर स्पेशलिटी है, उसमें कुछ स्पेशलिटीज है, नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रो है, कार्डियोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी भी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। तो सारी फैसिलिटीज है। लैब वाला एक इशू है और ब्लड बैंक इज इम्पोर्टेंट। ये हालांकि हम मान सकते हैं थोड़ी ही दूरी पर है, 2 इस पे एक बात अशरफ साहब ये भी हुई थी एक बार कि इसके ऊपर एक ओवरब्रिज, उसका मेरे ख्याल से प्रपोजल भी बना था, वो पता नहीं बाद में कहाँ गया वो मैं उसमें देख लूंगा। एक बात मैं आपको बताऊं, ओवरब्रिज बेसिकली जब आप एसएमएचएस से पेशेंट एक रेफर करते हैं जी, मुमकिन नहीं है आप उसको ओवरब्रिज से, हो सकता मुमकिन हो तो क्रिटिकल पेशेंट, सुपर स्पेशलिटी में कार्डियो वाले, ऑन्कोलॉजी वाले नहीं बड़े क्रिटिकल पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट्स। उसमें परसों भी सेक्रेटरी साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। कोशिश की जा रही है कि एक वे सा बन जाए, रास्ता सा बन जाए, ताकि आने जाने में, पेशेंट लेने में आसानी हो जाए। उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग वाला इशू है, तो इस पर हमने काफ़ी उनको जो एग्जीक्यूटिव है उनके पीछे पड़े हुए, और अनकरीब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई कि पेशेंट को ट्रॉलीज पे सुपर स्पेशलिटी से एसएमएचएस ले जाया गया, चाहे किसी प्रोसीजर के लिए, चाहे कोई टेस्ट करने के लिए, कुछ भी, और फिर उसी ट्रॉली पे वापस लेके आ गए। कितना डेंजरस है। आपने अभी कहा कि क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ये। अच्छा, एम्बुलेंस है आपके पास, लेकिन शायद एम्बुलेंस कहीं और गई थी, ये इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस वाक़े का। को क्या हुआ कि उसके बाद वो जो पेशेंट है उसको कैरी किया गया ट्रॉली पे, तो मतलब एक क्रिटिकल पेशेंट को ट्रॉली पे, और वो भी एसएमएचएस की सड़क पे जहाँ ट्रैफिक इतना होता है, वो बेचारा शायद उस बीमारी से नहीं मरेगा, ट्रैफिक हादसे में खुदा न खास्ता मर जाएगा। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा आगे नहीं होगा। हो सकता है उस वक्त हुआ है। मैं पिछली दफ़ा भी पूरी हिदायत थी कि प्रोवाइड एम्बुलेंस दीजिए, स्टाफ साथ दीजिए, पहुँचाए दीजिए, क्योंकि वहाँ आपको ऊपर भी जाना होता है अलग अलग फ्लोर में, तो पूरी उसमें है। तो एक वाक़ा आपने, मैं आई विल लुक इनटू इट, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक पेशेंट को पूरा वो प्रोटोकॉल है अच्छे से मॉनिटर किया जाए। सर, चूंकि आपको कई सारे स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है, कैसा महसूस करते हैं आप, और जो आपकी कामयाबी है उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, अवार्ड्स की बात नहीं है,
पब्लिक सर्वेंट हूँ तो काम करता हूँ, वैसे काम करता हूँ। अवार्ड के लिए तो कभी ऐसी कोई ये नहीं थी, बट मतलब जब आपके काम को एप्रिशिएट किया जाता है तो जाहिर है बहुत अच्छा लगता है। पिछली दफा एक अवार्ड मिला रूरल डेवलपमेंट में, जब मैं बांडीपोरा में था, तो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन PMAY, जो हम ग्रामीण में देते, गाँवों में देते ऐसे लोगों को मकान जिनके पास कोई वसाइल नहीं होते हैं, मकान एक सहायता देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, तो उस काम के लिए। बट इट वाज अ टीम वर्क, एक आदमी ने नहीं किया, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम। लीडर का बड़ा एक अहम रोल होता है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी लीडर थे, वो बड़े लीडर थे, हम दुआ करते हैं, वो पूरी उम्मीद है कि जो आपका रोल बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर GMC श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, उस पर आपको इंशाल्लाह अवार्ड मिले और अच्छा काम आप करें। एक छोटी सी बात, छोटी बात तो छोटी है लेकिन इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है इसका, वो ये कि स्टाफ की शॉर्टेज। हमारे आप ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ही आप एक डिपार्टमेंट है आपका, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट, जिसमें 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं। उनके नीचे कोई रजिस्ट्रार नहीं है, जो बोरोड रजिस्ट्रार्स हम कहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा फिर इनके पेशेंट्स को सर्जरीज होती हैं सर, बड़ी क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं, तो क्या कोई प्लान है? आपने अभी तक जो मीटिंग्स वगैरह ली, जो मसूद साहब हैं हमारे प्रिंसिपल एंड डीन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, उनके साथ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्योंकि रिसेंटली कुछ रिक्रूटमेंट्स तो हुई थी सब स्टाफ की भी, डॉक्टर्स की भी, डॉक्टर्स को कहीं जॉब मिल जाता है, सब स्टाफ को कुछ हाई कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस थी जिसमें से कुछ को निकाला गया, लेकिन वो गैप्स जो हैं वो फिल नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट का बोल रहा हूँ आपको। दो डॉक्टर्स हैं वहाँ, एक छुट्टी पे हैं, एक डिपार्टमेंट चला रहे हैं, वो आएंगे वापस तो फिर ये छुट्टी पे जाएंगे। तो इज इट पॉसिबल दैट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वाइटल डिपार्टमेंट है, इतना वाइटल डिपार्टमेंट है कि एक डॉक्टर जिसके नीचे अमला भी नहीं है, जो रजिस्ट्रार नहीं है, जो वो उस चीज को चला सके ऐसे तरीके? देखिए ऑन्कोलॉजी जो हमारे SSHS में है, या जैसे आप SMHS में, उसका रेडिएशन ब्लॉक भी है। जी जी। आप देख ले, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम कीमोथेरेपी राउंड द क्लॉक देते हैं। तो स्टाफ के लिए एक प्रपोजल है फैकल्टी क्रिएट करने के लिए, प्लानिंग के साथ उठाया, क्योंकि वो सेक्रेटरी सतह पर वो उठाया गया है। देखिए हमारा स्टाफ को पूरे करने के 2 रास्ते हैं फिलअप करने के। एक तो पहले क्रिएशन हो, उसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उसको जाइए, और तब तक एकेडमिक अरेंजमेंट जो आप कह रहे थे, कोर्ट ने किसी को हिदायत दी, एकेडमिक अरेंजमेंट इज ए प्योरली ए टेम्पररी अरेंजमेंट। 1 साल के लिए हमने किसी को रखा, हमारा परमानेंट उसमें आ गया तो हम गैप नहीं रखते, मतलब तब तक जब तक हमारी फुल टाइम रिक्रूटमेंट आए तब तक हम एकेडमिक अरेंजमेंट पर करते हैं। तो ऑन्कोलॉजी का मैं स्पेशली देख लूँगा, तो प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई है, तो इसमें मैं देख लूँगा जो फौरन से फौरन किया जा सकता वो किया जाएगा। जी सर, चूंकि आपका काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ भी हमने देखा है, और रिसेंटली हमने आपको देखा आप फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे थे, उसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे? अपने शौक वो शौक ही तो नहीं रहे कि उनको पूरा करने के लिए बीच बीच में आप वक्त निकालते हैं? बचपन में थे तो यहाँ श्रीनगर में रहते, तो हमारा प्ले ग्राउंड ईदगाह हुआ करता था, सबका मेन, शहरिकास का मेन प्ले ग्राउंड, तो उन दिनों खेलते थे बचपन में। ग्रेजुएशन तक तो खेल रहे थे, फिर जॉब में आ गई तो कहीं कहीं शौक भी पीछे चली गई। तो बांडीपोरा में थोड़ा सा रिवाइव हुआ, तो हमारे एक थे पद्मश्री फैसल अली डार, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा उसी ने वो वीडियो भी वायरल किया था। अदरवाइज आजकल वही सपोर्ट तो सब देखने की हद तक रहा, कहीं कहीं जॉब से नौकरी से तो वो फुर्सत नहीं मिलती, तो जब मिलते हैं 5-10 मिनट तो किसी के साथ खेलते हैं। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जब तक आप इस प्रेजेंट असाइनमेंट पे हैं एडमिनिस्ट्रेटर GMC एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल, वहाँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम वक्त आपको मिलेगा। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि जो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर GMC एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, तो कौन कौन से जो ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसी सेगमेंट्स हैं पूरे हॉस्पिटल्स में जहां आपको लगा, जो रिव्यू आपने लिया, जहां आपको लगा कि नहीं ये सही करने की ज़रूरत है, और आइंदा दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो चीज़ें ठीक होकर के हमारे जो लोग हैं उनको सहूलियत पहुंचाएंगे? देखिए जो हमारे सारे हॉस्पिटल हैं जिनमें हमारा करीबन सारे में रश रहता है, जिनमें ज़्यादा हमारा इनफ्लो है, पेशेंट इनफ्लो, उसको थोड़ा सा और रेगुलेट करने के लिए
اور طریقے سے اس کو کرنے کے لیے, پیشنٹ کیئر کو اور بڑھانے کے لیے تو میری تو سب سے بڑی اولین ترجیح تو وہی رہے گی کہ پیشنٹ کیئر اور انہینس ہو جائے اور پیشنٹ فرینڈلی ہو جائے. ہمارا ایک اور ہے, آپ کو پتہ ہے بون اینڈ جوائنٹ کا ہمارا نئی بلڈنگ بن رہی ہے, نیا بلاک بن رہا ہے, تو اس کو مکمل کروانا ہماری ترجیح رہے گی. ہمارا آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا ہاسپٹل ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز سائیکیٹرک ہاسپٹل, اس میں اور بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ڈپریشن اور باقی چیزیں کافی زیادہ ڈرگ ایڈکشن وہ چیزیں, وہ وہاں پر کاؤنسلنگ کی فیسلٹی اور بڑھ جائے اور چیزیں ہو جائے تو یہ ہمارا مین رہے گا. تو جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے او پی ڈی سسٹم جو ہمارا ہے وہ لائنوں والا سسٹم تھوڑا سا کم ہو جائے. اب آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ٹیک سیوی نہیں ہیں, ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ایمز اور اس میں آپ موبائل سے اپنی وہ کر سکتے ہو نہیں بالکل وہاں, تو اس میں بڑھنے اس کو او پی ڈی کو ایک اور نہ طریقے سے پلانڈ آرگنائزڈ وے سے, تاکہ یہ لائنوں والی قطاروں والا سسٹم کم ہو جائے, ختم ہو جائے, اس پر میں کام کرنا چاہوں گا. اور بہتر سے بہتر فیسلٹیز جو ہیلتھ کیئر میں ہے, آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بہت ہی کم ریفرر اب باہر ہوتے ہیں. پہلے لوگ باہر جاتے ہر ایک چیز کے لیے. آپ اگر ہمارے بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل کا دیکھ لیں گے, ہم اب نی ریپلیسمنٹ بھی کرتے ہیں, فل ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے لوگ سب جگہ جاتے ہیں. اس چیز کو قائم رکھنے اور اس کو انہینس کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے, اپڈیشن کرنے کے لیے میری ترجیح. بہت بہت شکریہ حقاق صاحب. ہماری دعا ہے کہ یہ جو ایسے مان زمانان کٲنٛسہِ دپان ٲسۍ أسۍ یہِ اَتھ کیٛاہ ٲسۍ وَنان ہٮ۪ڈ وُن, پتہٕ ووٚن اَکہِ ساتہٕ مےٚ أکۍ بُزرگن دوٚپُن اَتھ چھِ اصلی وَنان ہٮ۪ڈ وَن, ہٮ۪ڈ وَن ساروی کھۄتہٕ بہتر. سو ہم دعا کریں گے کہ آپ کی سربراہی میں ہیڈ ون اور جو بھی منسلک ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے, ان میں جو فقدان ہے کچھ سروسز کا وہ نہ رہے, اور جہاں پہ سروسز کو بہتر کرنے کا سکوپ ہے ان کو بہتر کیا جائے, اور جہاں پہ اسٹاف کے ایشوز ہیں یا پیشنٹ کیئر کے حوالے سے کہیں کیونکہ حکومت کا جو مشن ہے ہیلتھ فار آل, تو اس حوالے سے کہیں پہ دقتیں نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے جو قابل ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے ان کو نبھائیں, تاکہ جو لوگ ہیں لوگوں کو آسانی ہو جائے. ہاں, آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے ان اہم امورات پہ گفت و شنید کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں گے اور دعا کریں گے کہ جب ہم اگلی بار حقاق صاحب کو اس پروگرام میں بلائیں یا اپنے کسی دوسرے پروگرام میں بلائیں, دوردرشن کے کسی دوسرے پروگرام میں, تو اس وقت صورتحال ایسی ہو کہ آپ کے آنے کے وقت ایسا تھا اور آپ آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ایسا ہے. ہم ایسی دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کو نیک خواہشات بھی اس کے لیے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک گڈ مارننگ جے کے پروگرام پیش ہوتا ہے. ہمارا مدعا و مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو صبح کی چائے ہے وہ خوشگوار ماحول میں آپ اور ہم ساتھ پئیں, اور یہ 1 گھنٹہ ہم ساتھ گزاریں تاکہ دن کی شروعات جو ہے وہ بہتر اور بہترین طریقے سے ہو جائے. آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اور حمیرہ شفیع کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ ناصر.